Good evening, ladies and gentlemen. This is Devjani Roy. Absolute pleasure to be here amongst all of you today. Though it does promise and continues to be a very cold night out here in Delhi, but I feel across the country, I'm sure there are some warmer zones, and better still, even if there is cold outside, we are all here with warm hearts, representing this organization called Women with Wings today evening. I hope and I pray that that this year, 2021, has definitely begun on a better note for each one of you than what it had been in 2020 and the way the whole year had panned out for us. My heart goes out to all those who felt a lot of pain, who felt a lot of distress, and that includes every one of us, because I think for the first time in our lifetime, we felt being what it meant to be like in a box, like closeted in a box, without having the freedom to move as we wanted, to move around as we wanted, to do things the way we had been used to. And suddenly a new norm of leading life had come upon us. Compared to that, I feel 2021 will certainly bring better days for us, and amen to that. Thank you, all of you who have logged in for this particular broadcast. I represent Women with Wings, an organization which is the brainchild of Shefali, Shefali Singhal, as we know her, a brilliant, woman with a mind of her own. She has so many wonderful ideas that she brings to the table, and it all required to have a platform in place so that every one of us could sort of find ourselves bound together with a thread of commonality, representing ourselves in a way that had never been tried before. This platform that Shafali has beautifully brought to us promises to be one where women find their voices, women find camaraderie, women come together who have never ever earlier found a place to be heard, to be listened to, and they have probably not even experienced or learned from shared stories, anecdotes, and narrations as the way it is. So this is a brainchild not only of Shefali, but a group of like-minded people who have joined together. Harini, Shikha, Vatsala, Wing Commander Dimple, many of us, Sambhavi, and I'm sure I'm missing out on a lot of other similar people, but goes without saying that every rose is a rose called by any other name. So please count us as one amongst all a fraternity of like minded people powering ourselves to bring to you interesting anecdotes, interesting stories of life that will not only cherish the ones we already have for ourselves, but will give us some directions, some avenues for making it even better. Today, as we herald in 2021, we chose to start off our journey with a very different agenda, and possibly a topic which has been there, out there in society, somewhere around us, I'm sure, in the nooks and corners and the corridors of academic institutions, of offices, of corporate houses, every part of it, because I don't think there's any topic today which is not there out in the open. But this one has had its difficult journey. This one still continues to probably fight of a lot of prudence. This is absolutely a topic which a lot of us, despite our eyes open, don't want to wake up to. And what I'm talking about is diversity in its true meaning. When we talk about diversity and inclusion, we talk about it as just two more pseudos, two more cliched terms borrowed from the Oxford English Dictionary. However, diversity is not just a dictionary term, and please, we women will not allow it to be so anymore. Diversity is something which is part of us. Diversity where is a paradigm, is a platform where each one of us, irrespective of how God has chosen to build us, whether we have all the limbs intact, whether we have all the faculties well working, whether we have all the sexual demeanors and behaviors in place, we shall all learn to respect each other, to bring ourselves into a common platform, to learn from each other and make sure that there is a realm of respect, dignity,
all around us. And that is where we thought we will start the journey of 2021 with this particular section dedicated to diversity, and by bringing into the spotlight a wonderful lady by the name of Uruz Hussain. The name itself is beautiful, isn't it? Uruz itself has a almost a sublime quality to it, and I'm sure through the journey, once we embark upon understanding who Uruz really is, what has she been like through her life, what has she been bringing to the table, and actually leading a life so beautiful and pure even today, despite all the strife, all the tribulations that she has had to go through. I think you will agree with me at the end of the section that there is a lot that we still need to learn from each other out in the society. There is still a lot of inspiration for each one of us, despite everything that we may have experienced, or we think that, we have learned and seen it all. But there is so much out there, so many stories not told, so many stories not understood in the right perspective, that we have a journey to travel before we can become that saintly soul where we need to really understand and appreciate every human being the way they have been created. So today's episode and today's particular broadcast is going to be dedicated to this beautiful lady called Uruz Hussain. She was born in the year 1993, and in a faraway land called Bhagalpur in Bihar. Everybody familiar with Bihar will know that Bhagalpur is one of the prime cities of that particular state, but having its own share of trials and tribulations in itself. Uruz was born a man. That's the first thing that I want to share with all of you. When she started off, she was a child, she was a boy. She was a boy from every aspect. Okay, she went and played hockey. I still continue to say she, because that's her identity today, and that is what I'm going to be continuing to hold on to, despite what she would have been in her earlier life. So she went out to play hockey, she went out to play cricket. She was a part of a family where the mother was a homemaker, father was a practitioner outside, who maintained the home on the hearth. She had a sister to call her own. But right from her sixth or seventh standard, as she narrated to some of us, she started feeling a difference in herself. She started feeling all the pangs of being one of the female nature. She started feeling the differences that a woman or a child, or a little baby, who would belong to the female gender, still would feel for herself. And that started disturbing her to a great extent. Because in those days, not only was the education and awareness and orientation about this particular aspect of our gender and of our sexuality not known so much, but in places like Bhagalpur and many other cities, I'm sure, in the length and breadth of our country, these topics were one of taboo. It went so far as to, if a boy was seen playing with dolls, and if a girl was seen playing with cars, it would definitely become something to be commented upon, and your own parents and your own siblings would probably put you down by saying, "लड़के हो, तुम डॉल से क्या खेल रहे हो? और लड़की होती हुई तुम्हें गाड़ियों से क्या शौक है?" So, when these were really the power idioms in our house, and these were really the kind of practices that were being followed, what Uruz was feeling at that point of time was something she realized was not something very normal. At least she was intelligent enough right from start. Okay, the more she continued to give vent to her feelings, to introspect as to why this disconnect, where was this disconnect coming from, she realized that she was not born the same way as everybody else. She had a difficult life ahead. Women with Wings tells us Uruz is facing a technical issue, will join us ASAP. And I fear that I may just be able to, give away her entire story, because I was moved by it, and I'm raring to go and bring the story to you. But I would very much like you to see Uruz for herself, and this to be a conversation rather than a one-way dialogue. So I hope, and I call out to Women with Wings, please,
Please sort out this technical glitch at the earliest, because we want to see Uruz at the earliest. In the meantime, it suffices to just give you a little background of what Uruz would have suffered. She grew up in a closeted household where, talking about her sexual sensibilities and her disturbing introspections about why she was feeling different, was definitely something that she could not own up to. It was too premature, it was too early in life for her to be able to actually specify what was happening to even somebody like a mother or a sister for them to even understand. But one thing was very clear from the way her father conducted himself at the house, as well as through his ideology, it was very clear to Uruz that anything but the normal was not going to be acceptable to him. It was going to be a traditional way of household. It was going to be the normal way of bringing up two children, to get them educated from some of the best colleges, and make sure that they did not vacillate from any of those well-trodden paths, because there was society out there. There were enough relationships and ties which needed to have stability, and anything that revolved around an alternate sexuality, and I specify these two words, alternate sexuality, was not going to be welcome in that household. So that was what this particular story had all started off as. Uruz had a very, very disturbing growing up years. The more she grew up, the more her sensibilities became stronger, the more the urge to actually give vent to the alternate sexuality, the more she started identifying as one from the other sex. And just imagine the turbulence. Just put yourself, we talk about empathy. Feel empathetic for 2 seconds, even now, and think about what it would have been had you and me been in those shoes. Despite the modernity we think that engrosses our society, despite all the brilliant talks that we talk about and the vaunted jargons that we throw, our society still remains a very, very conservative one. And the place of a woman, especially in all of that, is that much more difficult. To be able to gain identity in true self is something which is extremely difficult, even for a normal sexual being having normal desires, mind you. And for somebody with an alternate sexuality, my God, tough to think what it would herald. Uruz didn't give up. Once you meet her across this channel, once you see her for yourself, you will see the gleam in her eyes. You will see the streak of determination on that face, and you will realize why, even today, she is where she is, and she continues to fight the battle not only for herself, but even for many others just like her. Women with Wings is something, is a platform that has been so well influenced and so much influenced by Uruz and her cause and the way she has stood by everything that she believes in, that this platform has sort of decided that in our own small ways, with the help of the brilliant ladies' power and the women power that we have sitting in this group, we will possibly do everything possible from here onwards to not only support Uruz in our own way, but also make sure that others like her are also, in some way or the other, brought into the mainstream and helped by us. Hallelujah. And here we have Uruz. Can you hear me, Uruz? Yes, ma'am. So, How are ladies you and all? gentlemen, this is Uruz Hussain. Uruz, Yes, hi, ma'am. Namaskar. Namaskar to everyone. happy to have you here, Uruz, and very, very sorry for that technical glitch. I think it Yeah, just took away some brilliant moments from your introduction. Um, yes. and I was getting goosebumps because I didn't know how much I could hold on to without getting you back onto the stream. Yeah, I know Uh, that you are waiting from me last 15 minutes because of some mic and camera problem. So that's the reason I'm late. yeah, yeah, understood. But Uruz, you have a terrific audience who are all waiting
to look at you, to see you, to hear you. And I took this little time to give a little background about your start at Bhagalpur, Patna, in Bihar. I described your household. I told them about the time that from sixth and seventh standard, you had started feeling that you were actually a woman born in a man's body, and what kind of a dichotomy that was bringing to yourself. So, Uruz, without me talking anymore, I'm going to pose the first question to you. Which is your first remembrances of childhood. Can you share some of those moments with us? That when you started realizing your alternate sexuality, what were the first remembrances from childhood that you'd like to share with us? Thank you so much, ma'am. Like पहला जो obviously मेरा जो जन्म हुआ था एक different शरीर में हुआ था. Like जब मैं छोटी थी और फिर मैं खौफ में आपको भी थोड़ा थी सा कि साउंड साउंड आपका बहुत कम है. अब सही है. बेटर है. थोड़ा माइक के पास हाँ, आके बोलिए. हाँ. मैंने कहा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत खौफ में एंड बहुत एक डर में गुजरा था जिसकी और फिर मेरे जो पापा थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे एंड मेरी जिंदगी में एक लकीर पहले से था जब मैं छोटी थी तो एक लकीर था उसी के अंदर रहना था एंड उसके अलावा like, थोड़ा डिफरेंट भी मैं और बच्चों से थी लाइक जो मेरे सोसाइटी के बच्चे थे या फिर स्कूल के मेट्स थे उनसे भी थोड़ा डिफरेंट थी थोड़ा फेमिनाइन सी थी जिसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम्स होती थी बचपन में फिर जैसे जैसे बड़ी हो गई लाइक पहले तो मुझे खुद नहीं पता था मेरी आइडेंटिटी क्या है मुझे काफी ज्यादा अपने आप को आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ, आ तो रही है, लेकिन थोड़ा और पावरफुल होगा तो और बेटर रहेगा. ओके या तो फिर बचपन बचपन तो ऐसे ही गुजरा एक डर में खौफ में लेकिन मेरे फादर ने मुझे आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पापा ने मुझे अ, इस काबिल बना दिया कि मैंने कुछ पढ़कर मैंने मुकाम हासिल किया है लाइक जो मैंने बिकॉज मेरा मेरे साथ बहुत सारी चीजें घटी थी बचपन की बातें अगर कही जाए तो बचपन में मुझे मेरे सोसाइटी के लोग या फिर मेरे आसपास के लोग या मेरे कजन छेड़ते थे परेशान करते थे जिसकी वजह से मैं काफी एक छोटे बच्चे को अगर हमेशा ताने मिलते रहते हैं ना कि तू तो लड़कियों जैसी हरकतें करते तो वो मेरे माइंड पे इफेक्ट कर रहा था और काफी ज्यादा स्टिल मुझे कभी कभी डर लगता है बट मैं ज्यादा सोचती नहीं बिकॉज अगर ज्यादा सोचूंगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा बिकॉज हमें खुद की लाइफ को खुद से बनानी है खुद करना है कोई हमारा साथ नहीं देगा एंड जब मैंने लाइक जब 10th स्टैंडर्ड हो गया तो 10th स्टैंडर्ड के बाद भी मुझे अपने बारे में नहीं पता था हाँ 10th स्टैंडर्ड के बाद भी मुझे अपने बारे में पता नहीं था दैट व्हाट आई एम क्योंकि मैं मेरे जो रवैया था मैं छुप छुप के ऑब्वियसली मैं उस टाइम क्लोजेट में थी लाइक लिपस्टिक लगाना एंड दुपट्टे ओढ़ना क्योंकि पहले तो बचपन में मम्मी कुछ नहीं कहती थी जब छोटी थी 5 7 इयर्स 7 स्टैंडर्ड में थी तो कभी कभी मैं लगा लेती अपनी सिस्टर के दुपट्टे दुपट्टे या फिर पापा बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम शिया मुस्लिम कम्युनिटी एंड काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है मेरा घर लाइक लाइक फादर भी स्ट्रिक्ट है उसी तरह से मुझे रहना पड़ता था तो सिस्टर के जब ईद पर कपड़े आते थे तो सबसे पहले मैं ट्राई किया करती थी कि मैं देखूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड फिर मैं उससे बताती थी कि तुम ये चूज करो ये चूज करो तो उस टाइम मुझे लगता है अभी कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है कि एक लड़का वैसा क्यों सोचता था मैं गलत तो नहीं थी कहीं से भी लेकिन फिर भी लोगों में लाइक मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव्स में भी एक्सेप्टेंस नहीं था मुझे लेकर लेकिन जब पीछे देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेकअप करना आई नो दैट कि मैं लड़का होकर मेकअप करती थी तो वो गलत अभी मुझे नहीं लगता कि वो गलत था क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स थी जो उस टाइम मुझे पता नहीं थी कि क्या है मेरे साथ और
ऑब्वियसली एक लड़कियों मैं अपनी मम्मी को देखती रहती थी, मम्मी कैसे काम घर का किया करती हैं, उसी तरह से मैं भी अपने आप को लाइक बढ़ती गई। हम्म। ओके, वंडरफुल, बहुत अच्छा। हम समझ रहे थे कि छोटी उम्र में बहुत सारी जो है परवरिश के टाइम पे बहुत इन्फ्लुएंसेस होती हैं, पापा की, मम्मी की, अपने आजू-बाजू में कज़िन्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। सो ऑब्वियसली क कश्मकश तो रही होगी आपके अंदर, लेकिन आपने सोचा कि ये कश्मकश को ज़्यादा देर तक पकड़ के रहना कोई काम की बात नहीं है, बिकॉज़ यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट मैसेज that we need to learn from you, and I'm sure everybody in the audience are also hearing with a gog interest. So, उर्वशी, एक बात बताओ, what role आपने ये तो बताया कि खौफ में कटी, थोड़ा डरी-डरी सी आप रहीं, लेकिन जो बुराई भी थी, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा भी तो होगा कि कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिन्होंने जब आपकी ये अल्टरनेट सेक्सुअलिटी के बारे में आपने उनसे कहा होगा या एक्सप्रेस करी होगी, कुछ कुछ लोग तो आपके पास भी आके आपको सपोर्ट करने की भी बात करी होगी, बिकॉज़ अकेले दुनिया में पूरी चीज़ को फाइट करना। सो वर देयर सम पीपल हू वर एब्सोल्यूटली इन सपोर्ट ऑफ यू, या एटलीस्ट आपसे आपको उन्होंने हिम्मत देने की कोशिश करी? यस मैम। मैम रही बात, तो मुझे फील होता है कि जो माँ बाप का जो सपोर्ट होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया है, और एक लाइक मेरा अपना भाई या अपनी बहन जो ज्यादा सपोर्ट करते, तो मुझे उससे ज्यादा मुझे फील होता स्ट्रांग सा कि हाँ मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई बहन मेरे साथ है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली मैंने हमेशा घर पे प्यार ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं भी प्यार नहीं मिला। मेरे पापा ने आज तक मुझे सर पे हाथ रख के या फिर स्कूल भी जाती थी मैं, तो फिर पापा ने कभी मुझे ना, मैं देखती थी मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स थे, उसके पापा उन्हें चॉकलेट देते थे, तो फिर मैं सोचती थी, और उसे फोrehead पे किस करते थे। तो मुझे मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरे पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। ऑब्वियसली मुझे, और फिर मुझे ना लगता था कि शायद पापा वैसा प्यार करते हैं। अब मुझे लोग मेरे जब मैं छोटी थी, तो फिर ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली असॉल्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से मैं डर एक डरना नहीं होता, जैसे एक छोटा बच्चा होता है लाइक 15-16 का, उसके साथ अगर आप, उसका बिहेवियर वो लड़कियों वाला है, लेकिन आप उसको है ना डरा रहे हो। अगर तुमने अगर ना किसी को कहा, तो फिर मैं ना तुम्हारे पापा मम्मी को बोल दूंगा करके, तो वो डर खौफ में, क्योंकि एक तो घर का डर था, एक फिर बाहर पे आके एक डर सा रहा, क्योंकि बाहर घर पर पापा का डर था, तो बाहर लोगों का डर था कि लोग मुझे परेशान करते हैं और इस तरह से मेरे साथ पेश आते हैं। और आपने जैसा कहा कि रिलेटिव्स या किसी ने साथ नहीं दिया, तो जहां तक साथ देने की बात है, तो मैं यही कहूंगी कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। इनफैक्ट जो भी किया है मैंने खुद से किया है। लड़ी हूँ लोगों से, लड़ी मैं लड़ी मतलब कि इसका मतलब है कि लड़ाई की है। लड़ी मतलब कि हाँ उस चीज से गुजरी हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी, क्योंकि मुझे रियली में कुछ करना था जब छोटी थी। तो फिर मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। और इनफैक्ट जब टीवी पर देखती थी ना मूवी वगैरह, तो कभी भी बॉयज वाला रोल प्ले नहीं करती थी। जैसे बच्चे होते हैं, एक सलमान खान का मूवी देखता है, तो वो सोचता है कि मैं सलमान खान बनूं, तो मैं वैसा कभी नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी करिश्मा कपूर ही बनूंगी। तो मैं डांस भी करती थी वैसे ही। और फिर मुझे इस टाइम काफी प्रॉब्लम्स भी होती थी, तो फिर पहले मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में काफी ज्यादा परफॉर्म करती थी, और गर्ल्स वाला ही परफॉर्म करती थी। लेकिन फिर उसके बाद है ना, लड़के ना मुझे चिढ़ाने लगे थे स्कूल्स में, जिसकी वजह से मैंने तो सोचा कि नहीं, अब लड़के वाला परफॉर्म नहीं करना है। तो फिर मैं चुप चुप सी रहने लगी थी, कि मैं ज्यादा अगर किसी से बात करूंगी तो लोग मुझे मेरे साथ शरारत करेंगे। और फिर मैं बहुत ही एक शरीफ सी, नहीं होती शरीफ सी बच्ची थी, जिसे ना जिसे बहुत सारे दर्द तो मिले, लेकिन रो देती थी, हमेशा रोती थी। मैंने बहुत टाइम सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाँ, मैंने कजन्स वगैरह भी जो थे, तो कजन्स वगैरह ने भी मुझे कोई साथ नहीं दिया।
मजाक ही उड़ाया पीठ पीछे। सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती है कि हाँ ये तो ऐसा हो गया, आगे आगे शुगर कोटेड तो सभी होते हैं ना, पीठ पीछे तो सब बोलते हैं। तो एग्जैक्टली। इसलिए अब सोचती हूँ क्या कि आम द क्योंकि मुझे, मैं ही हूँ जो मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं होगा। तो इसलिए, और फिर भगवान जी हैं तो उनके साथ ही बात करती हूँ। उरुस, मेरे क्योंकि पास शब्द नहीं और है। रही बात तो फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स भी आए, उन्होंने मुझे मेंटली फिजिकली यूज किया, और कुछ नहीं। जैसे मैं कह रही थी उरुस, मैंने पहले भी ये सुना आपसे, आपकी जबानी, अ, आज भी जब आप कह रहे हो और इतनी लोगों के बीच में कह रही हो, पहले तो दाद देनी चाहिए आपकी हिम्मत की। The kind of courage you have and the courage you bring to the table, it's not normal. This is not normal. आप में जो हिम्मत है, that is God gifted. अगर कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी पे कोई दरवाजा बंद करता है, भगवान 10 और दरवाजा खोल देते हैं। और रही Yes. आई थिंक अ, जो बात आपने कही और जो हमारी ऑडियंस ने जरूर सुना होगा, एंड आई वुड स्ट्रांगली अर्ज पीपल टू अंडरस्टैंड द kind of pathos and the loss that you've gone through. In a sense, you mentioned sexual assault multiple times. You talked about पीछे बात करने वाले लोग. You talked about कोई भी आपको support न देने वाले लोग. Okay, and taunting and living in that entire shadow of fear. घर में पापा और बाहर में दूसरे लोग. It couldn't have been an easy thing for you. And on top of that, ये भी है उरुस कि हमारे सोसाइटी में टिपिकली ये ट्रांसजेंडर और ये जो फिनोमेना है ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी की, इसकी Yeah. परिभाषा समझ में नहीं आती बहुत लोगों को। बहुत लोग इसको समझते नहीं है, इसलिए इसको बहुत गंदी चीज और गंदी नामों से बुलाया जाता है। कंसिडरिंग दैट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि what do you think is the meaning of being a transgender? I mean, how do you describe it? What is the popular and most common perception of this term in our society? आप किस तरीके से इसको शब्द में डालना चाहेंगी? मैम ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, लाइक ट्रांस मतलब कि एक ट्रांसजेंडर इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म्स। एक वो अम्ब्रेला की तरह है जिसमें, जैसे अम्ब्रेला का एक होता है ना, हर पार्ट्स होता है, तो फिर ट्रांसजेंडर्स में एक पार्ट होते हैं। क्योंकि कभी कभी ट्रांसजेंडर्स को खुद नहीं पता रहता कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और फिर ट्रांसजेंडर कोई चॉइस नहीं होती कि हम आज 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 मेरा मन किया तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ, कल को मैं हाँ। लड़का बन जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। वो तो दिल, अगर आप, मैं भी पहले सोचती थी कि है ना, मैं क्या हूँ, मैं अपने जेंडर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती थी कि आखिर मैं उन लड़कों जैसे अपने फ्रेंड्स जैसा क्यों नहीं हूँ करके। लेकिन फिर मुझे लगा, फिर जब मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट कराई, तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि दैट यू आर इन रॉन्ग बॉडी, एंड आपको अपनी ट्रांजिशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि दैट्स द रीजन आप सफर कर रहे हो। और फिर उसके बाद मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट की, एंड फिर ट्रांसजेंडर्स को बहुत लोग गंदे तरीके से देखते हैं, लेकिन समाज को भी सोचना चाहिए, उन्हें गंदे निगाह से तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम ट्रांस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। एक तो हमें घर पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, और फिर एक लोगों का रवैया, एक हमें घर भी मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि घर मिल जाए, तब भी नहीं मिलता। उसके अलावा हम कहीं बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, मैंने देखा है बहुत जगह, इनफैक्ट मेरे साथ भी कभी कभी होता है। तो फिर शॉपिंग करने चले, जो दूसरे लोग हैं वो काफी गौर से देखते हैं। पता नहीं लोगों में ये क्यों है कि ट्रांसजेंडर से डर, एक डर सा भी रहता है लोगों के मन में कि ट्रांसजेंडर, ओ माय गॉड, डर जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं सोचना है, वी आर वेरी स्वीट पर्सन। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी सब लोग स्वीट होते हैं, ऑब्वियसली। लोगों का जो रवैया भी हो, बचपन में जो बीतता है वही तो वो बाद में जाकर वैसे हो जाते हैं ना। वैसा होता है, क्योंकि राइट। बचपन अगर अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, बचपन ही अच्छा नहीं रहता तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि बचपन ही तो वो जिंदगी देती है जो आगे जाकर अम, अच्छा रंग लाता है, मेरे कह। और फिर उसके अलावा
लोगों को भी अब ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि अगर हम क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब थर्ड जेंडर की कैटेगरी आधार कार्ड तक में दे दी है, तो फिर इससे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर से जो क्लोजेट से बाहर अभी तक नहीं आए हैं, वो बिहाइंड अ फोर वॉल रहते हैं, जिसकी वजह से ना काफी उन्हें भी ऑब्वियसली हमें बचपन से पता तो रहता है कि हम दूसरे डिफरेंट हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है अपने आप को पहचानने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, सोसाइटी होता है, फैमिली होता है, स्टेप भी उठाना मुश्किल होता है कि मैं ट्रांजिशन करूँ ना करूँ। तो कोई लोग छुप कर रहते हैं क्लोजेट में, जिन्हें जस्ट क्रॉस ड्रेसिंग करना पसंद होता है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लाइक क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं जो लड़कियों की ड्रेस पहनते हैं, या फिर अगर लड़का होता है लड़कियों की ड्रेस पहनता है, वो भी क्रॉस ड्रेसर्स होता है, और लड़की लड़के की ड्रेस पहनती है तो वो भी क्रॉस ड्रेसर्स होती हैं। एंड फिर हम्म, उसके अलावा फीमेल्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ट्रांस वुमेन होते हैं, बहुत सारी चीजें। आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस वुमेन। हम्म। थैंक यू ओरुस, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आपने अभी बताई, इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में भरी हुई हैं। आधे लोगों को ये परिभाषा ना तो मालूम है, ना तो समझ में आती है। इसलिए हम शायद हमारे अंदर ये जो है, ये जो खामियां हैं, ये जो कमी है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियली इज अबाउट अ ट्रांसजेंडर, इसीलिए हम डरते हैं, इसीलिए हम उसको शन करते हैं। बिकॉज अगर अंदर से हमारी कॉन्शियंस क्लियर है, एंड इफ वी नो व्हाट द ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी इज अबाउट, तो हमारे और आपके बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। We are all made by God in our own specific ways, and we have our own ways to live on this earth. We have every right to have our own rights, the way we need to live on this earth. थैंक यू रोज। आई थिंक आपकी इन जबानी बहुत लोगों को बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई होगी। आई नो इट्स डिफिकल्ट। आई मीन, प्लीज डोंट माइंड, आई मीन आपसे ही पूछी जा रही हैं आपके इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन आपकी नजरिया इतना उज्जवल है, द वे यू एड्रेस दीज इश्यूज विद सच फोर्टिट्यूड एंड करेज। हमारे पास रोल मॉडल और कोई है ही नहीं, somebody who can so beautifully explain these concepts. लेकिन एक बात कहो रोज, यार ये मेरी नजर जर्नी में में। रोल मॉडल वही होता है, मेरी नजर में हर वो ट्रांसजेंडर अपने अपनी लाइफ की रोल मॉडल होती है, बिकॉज हर कोई बहुत ही कुछ सहकर क्योंकि एक ट्रांस की लाइफ बहुत ही हार्ड होती है, हमें बहुत कुछ Yes. सोचना पड़ता है, और हम इतने ज्यादा लाइक आज की जनरेशन जो है, बिकॉज आई एम 93 बॉर्न, तो फिर उसके बाद उस तब तक ये नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था। Hmm. एक्सेप्टेंस अभी आई है, लाइक जब से 2018, सो या 2018 में 377 पास हुआ है, तब से एक्सेप्टेंस आई है लोगों के अंदर। एंड फिर Right. अभी जो भी मैं न्यू जनरेशन को देख रही हूँ, जैसे मैं भी एलजीबीटी पार्टीज जाती हूँ, तो फिर वहां पर देख रही हूँ तो लोग काफी ज्यादा ओपन है अब भी, क्योंकि हमारे टाइम में नहीं था। मैं 22 ईयर्स तक एक शैडो में रही थी, एक अपनी आइडेंटिटी को हाइड करती रही, और Hmm. 24 ईयर्स बाद मैं क्लोजर से बाहर आई थी। 2 ईयर्स को मुझे Hmm. टाइम लगा, क्योंकि 2 ईयर्स मुझे हार्मोन्स ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट करवाने में टाइम लगा था, और मेरी बॉडी में थोड़े चेंजेस आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो फिर मैं 2 ईयर्स तक आइसोलेट रही थी, देन आफ्टर दैट मैं ओपन हुई थी। एंड अभी की जनरेशन क्या है कि अभी की जनरेशन क्यों 19 ईयर्स 18 ईयर्स में भी ही वो ओपन हो जाते हैं, एंड कभी कभी तो 15 ईयर्स बाद ही हो जाते हैं। तो फिर Hmm. वो अगर ट्रांस बनते हैं तो हाँ ये रहता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि अगर कि वो लड़की है या ट्रांस है। आज की जनरेशन में Hmm. ऐसा है, क्योंकि लड़कियां Hmm. True. वो इतना 15 ईयर्स का अगर कोई बच्चा होता है, अगर ट्रांजिशन करा देता तो ऑब्वियसली वो लड़की लगता है, बिल प्रॉपर लड़की लगता है। तो फिर इसलिए मुझे कभी कभी अफसोस आता है खुद में, काश मुझे भी ये बहुत पहले पता रहता, तो फिर मैं भी लड़की बन जाती। नो, बट मोर पार्ट ऑफ योर जर्नी अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी देखो आगे आगे आप क्या करती हो। उर्ज, एक बात बताओ, इतनी कठिन जर्नी, इतनी कठिनाई, इतना डिप्रेशन आपने कहा, कभी कभार आप घर में अकेली बैठ जाती थी, एंड काफी बार आपको सुइसाइडल थॉट्स भी आए। ये सारी नेगेटिविटी में, और जब आपको लगता था कि भाई द होल वर्ल्ड इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू टू पुट यू डाउन,
आप में क्या वो शक्ति था? What was your biggest motivation? Was it a person? Was it your thought? Was it your belief in something? मतलब कहाँ से आप वो courage ले आती थी at that moment to say to yourself कि नहीं, मुझे वो steps नहीं लेना है, मुझे जिंदगी से लड़ना है और अपनी जगह खुद बनानी है। तो कहाँ से आप ले आती थी? I really want to know that for the audience. मैम लाइक जब मुझे ऐसी ऐसी चीजें आती थी तो सबसे पहले मैं आईने देखती थी एंड फिर आईना देख कर यही कहती थी मैं अपनी फेवरेट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती अब मैं मर नहीं सकती। एंड उसके अलावा मैं आई बिलोंग्स टू शिया मुस्लिम फैमिली। तो मैं काफी ज्यादा इमाम हुसैन की चाहने वाली हूँ। लाइक जो करबला में वाकया हुआ था इमाम हुसैन और उनकी फैमिलीज के साथ, तो फिर वो काफी ज्यादा दुख भरा था, अगर आपको भी पता होगा तो फिर वहां पर वहां तो फिर मैं उनके गम को सोचकर अपना गम भूल जाती हूँ। एंड फिर उसके बाद सोचती हूँ कि मेरे गम तो कुछ भी नहीं। या फिर मैं किसी गरीब को भी देखती हूँ ना, जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे रहते हैं, या फिर जो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं उन्हें देखकर सोचती हूँ मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन उनके पास नहीं, फिर भी वो हंस रहे हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना सोचूं। और फिर उसी टाइम उसी दरमियान जब मैं बहुत ज्यादा लो सी फील करती हूँ तो मैं तुरंत ऐसे लोगों को ढूंढती हूँ जिनको रियल में जरूरत हो किसी चीज की। तो फिर मैं मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे देने से बहुत खुशी मिलती है, अगर किसी को मैं कुछ चीजें देती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो मैं खुशी देख क्योंकि मुझे एक्चुअली बचपन में कुछ भी नहीं मिला तो मैं इनफैक्ट बर्थडे भी है ना, मेरा बर्थडे 5 मार्च को आता है लेकिन मैं बर्थडे 2 टाइम मनाया करती थी गिफ्ट्स के लिए, बट मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं मिलता था तो फिर उसके बाद है ना, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अब मुझे लगता है कि अब बच्चे जो होते हैं ना, तो मैं सोचती अब वो लोग भी 2 टाइम मुझसे गिफ्ट लेंगे कितना मजा आएगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले आज तक मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया था घर पर। घर पर कभी बर्थडे मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। मैंने अपना बर्थडे 10th स्टैंडर्ड के बाद सेलिब्रेट किया था, वो भी खुद खुद से। मैंने अपने लिए केक लाया था और कोई कर दिया कि हाँ बर्थडे है वंडरफुल। एंड जो बात आपने कही, एंड मैं देख रही हूँ हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरह उससे अलाइन हो रही है। आपने कहा अपने से प्यार करना सबसे बड़ी ताकत हाँ, होती है। आई थिंक मैं दैट्स अ अपने से प्यार फैंटास्टिक। करती मैं रियल में सच बताऊं तो बहुत अपने से प्यार करती थी। लाइक बिफोर बिफोर ट्रांजिशन तो नहीं करती थी खुद से प्यार। आफ्टर ट्रांजिशन, लाइक जब मैंने ट्रांजिशनिंग स्टार्ट की थी तो फिर है ना मैंने खुद से प्यार करना स्वीकार कर लिया था। क्योंकि पहले तो मैं रॉन्ग मुझे लगता था कि मुझे ना जबरदस्ती लड़कों के कपड़े पहनना पड़ रहा है। फिर क्योंकि फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं था, छुप छुप के लिपस्टिक लगाना तो वो और नहीं हो पा रहा था मुझसे, कि मैं नहीं चाहती थी कि कल को गलत इम्प्रेशन पड़े। एटलीस्ट एक ही बार में मॉम डैड को पता चल जाए तो वो ज्यादा हो जाए। बेटर है छुप छुप के, क्योंकि हाँ, ऐसे तो मेरी लाइक लाइफ भी गुजर जाएगी। एंड फिर करेक्ट। मैं भी अंदर अंदर घुटती रहूंगी, तो मैं नहीं घुट चाहती घुट थी के कि मैं आप अंदर फ्री अंदर हो गए। हाँ। घुटूं। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ट्रांजिशन स्टार्ट कर देती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। एंड ट्रांजिशन के बाद क्या होता है ना, अब हम हार्मोन्स लेते हैं एंड हार्मोन्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लाइक ऑब्वियसली एक लड़के का जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन को खत्म करने के लिए एस्ट्रोजन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने भी एस्ट्रोजन का सहारा लिया। देन आफ्टर दैट मेरे ब्रेस्ट भी डेवलप हुए एंड बॉडी भी चेंजेस हुई, एंड जो हेयर्स हैं वो नहीं आते हैं। तो फिर उस टाइम क्या होता है ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। लाइक हम्म, ऑब्वियसली आप 22 साल तक एक लड़के के शरीर शरीर में थे, हाँ, आपका एक इम्बैलेंस आ लाइक जाती है शरीर में। हाँ हम्म, मैस्कुलिन चीज था, उससे फेमिनाइन सब कुछ, और भी फेमिनाइन तो थी, बट वो फेमिनाइन वाला जो चीजें था ना गंदा लगता है इनफैक्ट। हम्म, हम्म, क्योंकि अगर अगर एक मैं सोचती हूँ कभी कभी एक लड़का है अगर वो लड़कियों जैसी हरकत करता है तो फिर क्यों ना वो लड़की ही बन जाए, क्योंकि वो एक मजाक होता है लोगों के सामने। करेक्ट। मैं जब फ्लिपकार्ट डॉट कॉम में जॉब करती थी तो मैं बिल्कुल गर्लिश सी थी।
ठीक है, गर्लिश थी। और फिर मेरा हमेशा मजाक भी बनता था, तो फिर मैंने तभी फ्लिपकार्ट में ही सोचा था, नहीं अब मैं अपने आप को मजाक खुद से नहीं बनाऊंगी, मुझे मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, मुझे पता था कि मैं क्लोजेट में करती थी उस टाइम, 2013 के टाइम में क्लोजेट के अंदर रहकर क्रॉस ड्रेस करती थी। लेकिन है ना, फिर मैंने सोचा नहीं, अब मुझे ओपन होना है क्योंकि बहुत दिन हो गया। और फिर बस स्टार्ट करना है, और मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपनी इज्जत करनी है। अगर मैं जो हूँ वही दुनिया के सामने भी रहना चाहती हूँ, मैं छुप छुप कर नहीं रह सकती। और फिर हार्मोन्स मैंने स्टार्ट किया। हार्मोन्स के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मुझे सुसाइडल थॉट्स भी बहुत आए, बिकॉज उस टाइम एक्चुअली ना बाहर भी जाते थे ना, लोग पहचान जाते थे कि बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, तो लोग पहचान जाते हैं। आखिर दो एक महीने पहले तो ये फ्लैट चेस्टेड था, हम्म। एंड अभी हम्म। कैसे डेवलपमेंट हो गया, तो उस टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता है। बहुत सारी चीजें यानी कि बहुत पेन होता है उस टाइम, आपके शरीर में बहुत पेन होता है, क्योंकि आपके बोन्स वगैरह खत्म होते हैं ना, बॉयज वाले। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। समझ में नहीं आता, मतलब जब आप पेन बोलती हो ना, तो पेन का परिभाषा ही हमारे लिए बदल रही है एक्चुअली। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों का पेन मानते हैं, लेकिन असल पेन तो अब समझ में आ रही है कि लोगों की जिंदगी में का किस हद तक वो पेन जा सकती है। उरुज, देयर इज अ सेइंग दैट ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप। और कोई भी अगर जो आपको आज देख रहा है, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मुझे मुझे बड़ी हंसी आई कि जब आप मूवीज देखती थी तो आप सलमान खान या आमिर खान को नहीं पसंद करते थे, आप उनके जैसा नहीं बनना चाहती थी अब, लेकिन करिश्मा कपूर जैसा बनना चाहती थी। भगवान भला करे आप नहीं करिश्मा कपूर बनी, लेकिन उसकी छुट्टी हो जाती। तो मैं यही कहना चाह रही थी, अच्छा हुआ कि आप नहीं गए बॉलीवुड। तो खैर, करिश्मा कपूर सेपरेट, योर ब्यूटी इज योर ओन। और कोई भी आपको देखे तो समझ सकते हैं कि ब्यूटी इज समथिंग व्हिच इज नॉट स्किन एक्चुअली डीप, बात वो करिश्मा अंदर से कपूर की आती है, नहीं, वो एक्चुअली बात अंदर करिश्मा से कपूर आती की है। नहीं। मैं अपनी कजन्स को भी देखती थी ना, तो मैं सोचती थी मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ, लाइक हाय जैसी हाय। वो है। आई मीन वो मतलब कि जैसे उसका ड्रेसिंग है, क्योंकि मुझे तो एक तरह से वो बंदिश में रखा गया था ना कि हाँ तुम्हें ये हाँ पहनना है। हाँ तो हाँ। ऐसा था, तो इसलिए मैं तो सोचती थी। आज जब आप मिरर के सामने खड़ी होती हैं, और जब आप अपने को देखती हैं, एंड वो जो अंग्रेजी में कहावत है दैट तो ब्यूटी यही इज कहती हूँ मैं अपनी आइज, वो फेवरेट हूँ। अंदर से आती है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ये बताओ आप। तो मैं यही सोचती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ। और फेवरेट होना भी चाहिए, एब्सोल्युटली। एक एक बात बताइए, टुडे यू लीड अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ। फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट येट, she runs her passion, she runs a cafeteria which opens at in the evening time. It's a wonderful concept, and it goes right through the night, and it closes down at 4 a.m. in the morning. So from evening to early bird morning, she runs a cafeteria in Sector 119 in Noida. And she's right there meeting customers hands on. And from what I've heard, the sandwiches that she serves is to die for. So for those at least in NCR region, at least do make sure that you do give her cafeteria a visit, get to know her in person. And that brings me to the next question, Uruz. Today you lead such an independent life. आप एक successful कैफे चलाती हैं, यू डू सोशल वर्क। आपने दिवाली के टाइम आपने गरीब बच्चों में बहुत सारी चीजें बांटी, आपने उनको खाना खिलाया। आप हर रिलीजन में भी भरोसा रखती हैं, यू आर अ बिलीवर इन एवरी रिलीजन। यू हैव शेयर्ड योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स एट हरबिंदर साहब, at gurdwaras, at Christian missionary houses. To that extent, ladies and gentlemen who are listening to us, I happen to mention to her that I am a strong believer in the concept of Ardhanarishwar, which is, Shiva, who has a part of woman as well as man as part of our entire being. It is said that every individual actually has a part of man and woman built into each one of us. So I hold that concept very close to heart. And when I said that, the first thing that Uruz said is, "Oh, ma'am, there is a beautiful Ardhanarishwar temple which is there on the road to Chitkul, and मैं पिछली साल वहां गई थी." And I was taken aback.
and she showed her photograph. I mean, I wish we could project her photograph on this. Beautifully dressed in a sari, she was sitting in front of the temple with the puja samagri in hand, and the ethereal and the sublime look on her face, it just took away all the pain of what this huge character has gone through in her life, and what a brilliant a fight back she's giving to society. आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं, that have you won the battle or is the battle still on? अभी जारी है लड़ाई? अभी अभी बहुत कुछ जा रही है, अभी बहुत मुश्किलें आएंगी, बट फिर भी कुछ नहीं, बस जीते जाना है, जिंदगी का नाम ही है जीते जाना। तो बहुत सारी मुश्किलें पहले भी थी, एंड आएगी, आने वाली भी होती है ना। तो मुश्किलों से तो कभी भागती नहीं हो। एंड उस टाइम क्या होता है कि विश्वास रखती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ और फिर मैंने किसी का गलत नहीं किया है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। मैंने जैसा कि कहा कि मेरे घर में मंदिर भी है, एंड मैं इमाम बारगाह भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, गुरुद्वारा भी जाती हूँ। तो फिर ना भजन सुनकर भी मुझे शांति मिल जाती है, क्रिसमस का कोरल सुनकर भी मुझे अच्छा फील होता है, आरती भी मैं करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो फिर बस आने वाली मुश्किलों को आ, खुद से ही, क्योंकि हर लोग तो खुद का ही एक बचाव रक्षक होता है ना। तो हाँ। मैं भी अपनी खुद की रक्षक हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, इनफैक्ट आई हैव बॉयफ्रेंड एज वेल, बट मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे ही विल लीव मी एंड से मी कि तुम तो ट्रांस हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता। Actually, I don't believe in men. Men are men for me because I got hurt so many times. पहले भी, and financially, mentally, सब तरह से मैं वो हुई हूँ। बट इट्स ओके। मैं मैं खुद पर बिलीव करती हूँ। आई हैव डॉग, तो मैं अपने डॉग को, और ज्यादा अगर मुझे होगा तो फिर मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगी, अभी नहीं बाद में, इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज दुआ करें, इस काबिल हो जाऊं कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, उसे बहुत अच्छी शिक्षा दूं और उसे बहुत प्यार दूं। उरुज, शब्द नहीं है एक्चुअली इसके बाद मुझे कुछ कहने का। तुम्हारी हर जो सपना है, हम यही चाहेंगे कि हर वो सपना सच हो जाए, बिकॉज तुम अपनी ये पूरी जर्नी में पेन का शब्द इतनी बार यूज किया है, पेन पेन एंड ऑल। मुझे बस अब प्लेजर एंड प्लेजर एंड No, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। I'm not playing a victim card here. No, I'm not at just all, no. You just what I narrated feel। what was true. लोगों के Yes, सामने ही absolutely. इनफैक्ट पता है, मैं लोगों के सामने अपनी बातें रख भी नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बातें करूं, मैं बहुत अच्छी कहानियां तो लिख सकती हूँ, लेकिन बातें मैं अपनी रख नहीं पाती हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ माई शाय नेचर, मे बी बिकॉज ऑफ आई एम इंट्रोवर्ट, या फिर मुझे ये ऐसा फील होता है शायद मैं इतना खौफ, इतना डर में जी हूं ना, कि मुझे ना हमेशा कंट्रोल में रहने लग, एक कंट्रोल नहीं होता, एक डोमिनेशन जो होता है जिस पर किया जाता है, डोमिनेट, तो वैसा डर सा रहता है। आई अंडरस्टैंड। और मैं यही आपसे कह रही थी कि हम सब चाहेंगे कि आगे जाके यहाँ से, अभी से जो शुरुआत है उसमें सिर्फ प्लेजर और हैप्पीनेस, प्लेजर एंड हैप्पीनेस, यही समझ में आए, यही सोच सुनने को मिले। हाँ, ये कोई आइडियल वर्ल्ड तो है नहीं उरुस, इसमें आपकी भी लड़ाइयाँ जारी रहेगी, हम सब की अपनी अपनी लड़ाइयाँ या वो होती रहती हैं। All we have to make sure is that we stand by each other, and on that basis I can, on behalf of Women with Wings, on behalf of Shefali and all the other ladies who are wonderfully associated with Women with Wings, we can commit that we will be standing right next to you in your journey forward. किसी भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके से हम अगर आपकी साथ निभा पाए, हम अगर आपको हौसला दे पाए, हम आपकी कोई भी छोटी सी चीज भी अगर हम सॉल्व कर पाए, तो हम अपने को खुश नसीब समझेंगे।
One of the few things that I would like to appeal to all of my fraternity, especially in NCR region, is, we do a lot of corporate parties, we do a lot of corporate events. हम लोग जो corporates के साथ connected हैं, maybe we can find an event or find an opportunity to actually do something in Uruz's cafe. We might want to go out there first ourselves, check it out, talk to her, and if we feel that somewhere we can bring about a little bit of a buzz and we can create a certain amount of marketing dynamic around her cafe, I think it'll benefit her greatly. So that's a personal and a professional appeal which goes out from my side as an individual as well as part of Women with Wings. उरुज, आज की नौजवानों को, आज की जनरेशन को, जब आप देखती हैं आज के नौजवानों को, बड़ा फास्ट मूविंग है, हाई एस्पिरेशंस, शॉर्टकट्स लेते हैं, सोचते हैं कि सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाती है सबको, एंड दे आर ऑलवेज फास्ट टू जज, फास्ट टू क्रिटिसाइज. इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन ऑल्सो वेरी हाई एस्पिरेशनल. उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज ये तो जरूर है कि हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आती हैं, अलग अलग तरीके की. तो वो फाइट करने के लिए एंड टू इमर्ज एज विक्टोरियस एंड सक्सेसफुल, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेंगे उनके लिए? सही चीज पर सही वक्त पर वो चीजें हासिल हो जाती है. एंड फर्स्ट ये, एंड फिर आप उन्हें विश्वास रखना चाहिए. विश्वास, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी. तीसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद से प्यार करो, एंड जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे प्यार करो, और लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड सबको एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एंड डोंट डिस्क्रिमिनेट एनीवन. How beautiful. That's the lovely message. And क्या आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी जो नाम आपने अपने लिए रखा है, जो आप अपने को बुलाती हैं और क्यों बुलाती हैं? आपने मेरे साथ शेयर किया था, हुसैनी ब्राह्मण. माय सॉरी, आपने एक नाम नाम हाँ, शेयर मैंने किया था अपना ना? नाम सोनी सोनी रखा है. मैं अपने आप को सोनी सोनी बुलाती हूँ. अच्छा, यानी कि और जो इसके मेरे पीछे, फ्रेंड से क्लोज फ्रेंड है वो मुझे सोनी कहते हैं. अच्छा, ओके. और आज फैमिली में ऐसा कोई है जो आपके साथ टाइज जारी है? आपकी सिस्टर शायद आपके साथ हाँ, मेरी सिस्टर कनेक्टेड है. मुझसे बात करती है, फोन पे हमारी बातें होती है. इनफैक्ट वो रेस्टोरेंट भी आ चुकी है यहाँ पे, बट जीजू के साथ नहीं आई थी, वो अकेले आई थी. एंड उसे अच्छा लगा था. सो मैं उससे एटलीस्ट बात यू. करती हूँ, सिस्टर से बात करती हूँ, एंड फिर उसके अलावा फोन पर जो भी कजन्स वगैरह उनसे बात करती हूँ, मिलती नहीं हूँ. मैं और उनसे प्यार मम्मी. भी करती हूँ. कभी कभी कुछ होता है तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, एंड कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ. और जो डॉग आपने रखा हुआ है घर पे, एंड यू स्पेंड योर टाइम बिटवीन द डॉग एंड द कस्टमर्स इन द कैफे, व्हाट डू यू गेट एज इज दैट योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टुडे? मैम, डॉग जो मैंने रखा है तो वो एक्चुअली जब मैं रहती हूँ ना घर पर, तो फिर वो जागा रहता है, एंड जब मैं जाती हूँ तभी वो सोता है. जब आ जाती हूँ तो फिर, क्योंकि 8 आवर्स 9 आवर्स के लिए जाती हूँ मैं. एक्चुअली कैफे तो ओपन होता है 2 o'clock इन द आफ्टरनून, एंड 2 बजे से लेकर अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock तक होता है. एंड आई यूज टू गो लाइक 6 o'clock में शाम में जाती हूँ. एंड ओके. 6 o'clock के बाद ज्यादा देर नहीं रहता ये, फिर तो रात हो जाती है ना, तब तक वो सो हाँ. जाता है. और क्या आपने जैसे अपना नाम सोनी रखा, आपने अपने डॉगी का नाम क्या रखा है? जैस्पर. My God. Okay. Fantastic. Anyway, I think Uruz, आप अगर ऑडियंस के साथ कुछ भी बात करना चाहें, आप अपनी एंड हाँ, मैं ये तरीके कहना से. चाहती हूँ, मैं मैंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था 21 नवंबर 2019 में. एंड फर्स्ट तो मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई बिकॉज ऑफ माय जेंडर की वजह से मुझे अच्छी परफेक्ट लोकेशन पे मुझे नहीं मिल रहा था शॉप, जिसकी वजह से एक मुझे शॉप मिला था 45,000 का. एंड वो शॉप भी लेने में मुझे फर्स्ट के, जब मैंने शॉप ली थी वो 2.5 लाख के अराउंड हो गई थी रजिस्ट्री एंड ऑल के लिए. तो फिर मैंने सारी चीजें करी, क्योंकि मैंने बहुत
क्राउडेड प्लेस पे भी सोचा था करूंगी। ऑब्वियसली एक फूड के लिए क्राउडेड प्लेस होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मुझे क्राउडेड प्लेस पे कहीं मिल नहीं रहा था कि मिल जाए, क्योंकि वो कह रहे थे नहीं मेरे आसपास मेरे बच्चे हैं तो ट्रांसजेंडर्स को मैं नहीं दे सकता करके, शॉप नहीं दे सकता। तो फिर मैंने ना एक शॉप ली है, 119 में ली थी। फिर मैंने वहां पर कैफे की शुरुआत की, कैफे मैंने ओपन किया। देन आफ्टर दैट 2019 में किया था। एंड फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम तो होता ही है ग्रो करने के लिए एंड गेस्ट बनाने के लिए, कस्टमर्स। मैंने बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश की। एंड फर्स्ट तो मुझे भी थोड़ा पहले शुरुआत में लगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो आसान नहीं था, रोज ऑफिस जाना, रोज शटर खोलना, रोज शटर बंद करना। तो फिर वो भी मेरे लिए 1 मंथ तक मुझे भी थोड़ा एडजस्ट करने में वहां पर मुझे मुश्किल आई। एंड फिर उसके बाद मैं रोज जाती थी, तो पहले शुरुआत में मुझे सुनने में भी बहुत मिलता था। जो कॉम्प्लेक्स के लोग थे वो मुझे काफी बुरी बुरी बातें कह रहे थे, बुरी बातें इन द सेंस कि मजाक के तौर पर। ठीक है, तो फिर मैं अवॉइड कर देती थी। मैं सोचती नहीं, छोड़ो, क्यों अवॉइड ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद वहीं पर मैं रोज आती थी। फिर उसके बाद लोग कस्टमर्स आने शुरू हो गए नवंबर के बाद से दिसंबर में। दिसंबर में पार्टीज भी मैंने रखी, पार्टीज भी हुई वहां पर, अच्छा क्राउड था। नवंबर एंड दिसंबर का तो सैलरी खुद के सेविंग मनी से ही गया था। एंड जैन में पीक हो गया था मेरा बिजनेस, जैन एंड फेब में, क्योंकि फेब में गोल्डी जी सिंह की वीडियो रिलीज हुई थी, फूड ब्लॉगर थे, उन्होंने शूट किया था। तो फिर कस्टमर्स इज कमिंग। दिन मार्च में तो कोविड ही आ गया था। कोविड में भी मैंने पहले ही 16th को मैंने क्लोज कर दिया था रेस्टोरेंट, 16th ऑफ मार्च को। वो भी Okay. सैलरी देकर, 16 मार्च तक की सैलरी देकर मैंने कहा था कि आप लोग जा सकते हैं घर, क्योंकि अभी कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि फेब से ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो था वो डाउन हो गया था। लाइक Hmm. लोगों ने घर से बाहर जाके खाना बंद कर दिया था फेब्रवरी के बाद से ही, आई रिमेम्बर। फिर मैंने जुलाई में ओपन किया, जुलाई एंड अगस्त में। एंड मेरा एंड मैं एक बात और बताऊंगी, मेरे लाइफ का सबसे जो कठिन समय था, दो समय था मेरे लिए। एक में मम्मी की मौत जब हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरे लिए वो मुश्किल था, क्योंकि मैंने एक्चुअली ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कराया था। देन आई रिमूव माई ब्रेस्ट। तो काफी वो मेरे लिए हार्ड सा था। मैं अपने पेन में, एक तरफ से मेरे बैंडेज लगा है, मैं पेन सह कर मैं फ्लाइट में गई, क्यों खून भी निकल रहा है कि मुझे नहीं, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। वैसे मैं घर गई, क्योंकि घर पे एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे वहां पर ऐसा कुछ शो नहीं कर सकती थी, और मॉम, मैं ही थी और मेरा भाई था, तो फिर मुझे ही करना था। तो वो मेरे लिए काफी हार्ड था। प्लस एक इस बार भी दिन फिर मैंने अगेन पैसे सेव किए, एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं सारस कराऊंगी सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी, वो भी नहीं करा पाई। क्योंकि सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी में भी ये हो गया कि मुझे जुलाई और अगस्त में मैंने ओपन कर लिया था रेस्टोरेंट। मैंने सेविंग्स में, जो मेरी सेविंग थी डॉक्टर मोनिशा कपूर साकेत में थी, तो उन्हें मैंने अपनी एसआरएस के पैसे दे दिए थे, हाफ हाफ करके दिए थे। तो फिर उनके पास जमा था। फिर उन्होंने फिर मैंने उन्हें कहा था मैम मुझे सैलरी वगैरह देनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली लॉकडाउन में कुछ भी काम नहीं था। लाइक रेस्टोरेंट ऑफ था, सब कुछ था, और रेस्टोरेंट का शॉप का भी पे करना पड़ रहा था, तो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड फिर मैंने डॉक्टर मोनिशा कपूर ने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरे पैसे रिफंड किए। देन अगेन मैंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ। एंड प्रमोशन से लेकर सब कुछ करती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, एट स्ट्रीट टेम्पटेशन 119 करके पेज है, वो पूरा लोगो वगैरह बनाना सब कुछ मैं डिजाइन भी करती हूँ। लेकिन अभी तक मुझे ना वो जिसे एक होता है ना क्रेडिट मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिला। तो Hmm. मैं चाहती हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करती, प्लीज विजिट टू माई रेस्टोरेंट। एटलीस्ट अगर आप आओगे तो मुझे ज्यादा फील बेटर होगा।
हमने already, I think, on behalf of this Women with Wings, as well as all of us individually, we are all committed to your journey and your success. हमने already बोल दिया है. अपनी तरीके से पीछे से हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे जो हमारे हाथ में हो सकती हैं, जो हमारे दायरे में हो सकता है. But yes, today you have a whole fraternity of friends and admirers. Don't count yourself alone anymore, Uruz Hussain. You have No, no, मैं कभी admirers. अपने आप को You अकेला नहीं have समझती. tremendous, सीरियसली you मैं have, अपने आप को नहीं, and कभी now भी you अकेला have नहीं new समझती. ones. इनफैक्ट जब मैं You have ग्रुप new friends. अभी आपके नए दोस्त बन गए हैं और भी बनते रहेंगे. इंशाल्लाह भगवान भला करे, आपको वो हर खुशी मिले, हर सक्सेस मिले जिसकी आप जिसके लिए आप तैयार हो. एंड जो क्रेडिट की बात आपने कही कि आज तक वो क्रेडिट आपको नहीं मिला, किसी को पता नहीं होता कि लाइफ की टर्न्स कहाँ से होती हैं और कब जाके वो क्रेडिट आपने झोले में आ जाती हैं. आप थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है, और मैं जरूर भगवान से प्रेयर्स करूंगी कि बहुत बहुत जल्दी आप वो क्रेडिट आपको दिखने लगे, वो फ्रेंडशिप्स आपके होने लगे, वो सपोर्ट आपको मिलने मैं लगे, जिससे यहाँ आप पे एक मैं कहूँगी एकदम नई क्रेडिट्स तो तरीके मुझे से बहुत मैम यहाँ आप पे मैं एकदम. कहूँगी क्रेडिट्स तो मुझे बहुत मिले, लेकिन मुझे जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने यूज किया, मैंने यूज नहीं किया इस क्रेडिट को. So that is all right. You see, हम कुछ चीजें करती हैं, कुछ चीजें हमसे करा लेते हैं. नो हाँ. इन थिंकिंग अबाउट जो है, जो चीजें हम उसको वापस लाके या दूसरी दफा उसके बारे में सोच के अपनी लाइफ को नेगेटिविटी कर देना, वो कोई अच्छी बात नहीं है. आई फील यू शुड लेट थिंग्स. तो इतनी खूबसूरत हो अंदर से भी बाहर से भी. ओके, अपनी खूबसूरती बनाए रखो, अपने से प्यार करती रहो, और हम सब लोग मिलके वी विल कम विजिट यू इन योर कैफे एंड वी विल डेफिनेटली डू एवरीथिंग पॉसिबल सो दैट तुम्हारी स्ट्रीट टेम्पटेशंस becomes a real big success tomorrow. Okay? थैंक यू सो मच. Thank you, ladies and gentlemen. I think it's been an absolute wonderful session with Uruz Hussain. I had promised you right at the start of the session that इनसे मिलने के बाद शायद आप कुछ देर तक गहरी सोच में या गहरी ना भी हो, थोड़ी सी सोच में तो जरूर पड़ जाएंगी कि life has its different turns and we have still long miles to travel before we realize how beautifully we can still carve our directions based on what experiences each one of us bring to the table. Thank you very much for being so patient and giving Uruz a brilliant audience. We are all there for her. I've promised on behalf of all of you. Thank you so much. And cheers to Women with Wings for doing something so admirable at the start of 2021. Thank you, Uruz Hussain. More थैंक power यू to सो you. मच. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. Absolutely. And we have also told her that she should start her handles on LinkedIn and Facebook also. So slow and steady, she'll be all over social media. Thank you so श्योर. much. थैंक यू. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू मैम. थैंक यू. Thank you. Bye bye. बाय.